مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، پھر میرا غصہ آتا ہے مجھے نا، جب تک رمیز راجہ صاحب تھے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی یہ بات کرنے کی، اور میں تھرو آؤٹ پینل میں تھا۔ اگر آپ نے کرائیٹیریا پی ایس ایل ہی رکھنا ہے، میں آپ کو 8 جو دنیا کے بہترین ممالک کے نام دوں گا، آپ نے ایک پلیئر آپ چوز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناک آؤٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہے، انہوں نے نہ صرف اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتے، بلکہ قومی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کی، اور یہ آواز پی ایس ایل 2022 کے وائس آف پاکستان کے عنوان سے ہمارے سامنے آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہر زبان کی جو ہے یہ شخصیت زینت بن گئے۔ میں بات کر رہا ہوں پی ایس ایل کے 2022 میں ہونے والے وائس آف پاکستان کے ایڈیشن میں جو شخصیت جنہوں نے ون کیا تھا اس کانٹیسٹ کو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ایاز بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ ایاز بھائی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، بڑی مشکل سے ٹائم دیا۔ نہیں، مٹی سے جڑے مٹی بہت لوگ ہیں۔ مصروفیات چل رہی ہیں، کیا مصروفیت چل رہی ہے ابھی آپ کی؟ ویسے ابھی تو الجھے خود کو سلجھانے میں، ابھی تو زندگی سلجھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں دے کے جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل جی، اللہ پاک جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین آمین۔ مشکلات میں آج تھوڑے سے مزید آپ کو ہم جو ہے نا مشکل میں ڈالنے لگے ہیں۔ مشکل میں میں نہیں ڈلتا، کیمرہ دیکھ کے اور اچھا پرفارم کرتا ہوں۔ اچھا، چلیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آئی ہوپ سو۔ اصل میں آج 2-3 ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، ہمارا پی ایس ایل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پی ایس ایل پچھلے 3 دن سے تھوڑا سا اس میں انرجی آئی ہے، بوسٹ آیا ہے، لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ سیزن 10 ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو پی ایس ایل کی تیاریاں ہوئی ہیں، جس طرح سے پی ایس ایل چلا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، عزت دی۔ میں 2-3 چیزوں سے، جیسے ہی پی ایس ایل سٹارٹ ہوا نا، 2-3 چیزیں تصادم تھی۔ سب سے پہلے بھی کوئی بھی انٹرنیشنل لیگ ہے نا، کوئی بڑا برانڈ کسی کو آپ بنانا چاہیں، کبھی بھی آپ کی خاندان میں شادی ہونا تو دوسری شادی کے ٹائم پہ شادی نہیں رکھتے آپ۔ بالکل ایسے ہی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک بہت بڑی لیگ چل رہی ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک میں ایک لیگ چل رہی ہے IPL۔ آپ نے اس کی تصادم میں تاریخیں رکھ دی اور ڈیٹس رکھ کے اناؤنس کر دیا، جبکہ ابھی وہ پیک پہ چل رہا ہے اور آپ نے اپنی اوپننگ کر دی۔ ایک ایشو۔ دوسرا ایشو جو سب سے بڑا، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹینک کیا کر رہے ہیں پی سی بی کے، جو اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنی بڑی بڑی سیلریاں لے رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی مرات لے رہے ہیں، اور ایک بہت سارے لوگوں کی فوج، ظفر موج جو ہے، پتہ نہیں کن چیزوں پہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ایشو غزہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد باوجود آپ مین سپانسر ایسے لے کے آ رہے ہیں، جس آپ کو پتہ ہے ہماری پنچ لائن جو ہے نا مذہبی ہے ہمارا۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، تو پاکستان وہی مذہبی ٹچ دینا ہوتا ہے عوام کو، تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے مین سپانسر، بے شک آپ سپانسر لیں، سپانسر کے بغیر کوئی بھی ایونٹ مکمل نہیں ہے۔ آپ پھر ان کو مین لوگوز دے رہے ہیں، پیپسی کو یا پھر KFC کو یا میکڈونلڈس کو، تو اس طرح تو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نبض جو ہے وہ کس سے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی تو چیز ہے، رسول اللہ یا پھر مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ گراؤنڈز آباد رہنے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہبی، سیاسی یا اس سے بالا تر ہے کرکٹ کھیل، گراؤنڈ، میدان۔ پہلے ہمارے صرف ایک کھیل بچا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نہیں، اصل میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک جب چیز چل رہی ہے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہاں پہ آ کے ہم پہلے سے بہتر اس وجہ سے بھی کروا سکتے ہیں کہ وہاں جو پلیئر نہیں ہوں گے پک، وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے نا۔ دیکھیں، اب ایک انہوں نے اچھے پلیئر پک کر لیے، لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، پاکستان کی عوام بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں ویلے گو میں، ہم معذرت کے ساتھ ویری سوری ٹو سے، تو ان کے پاس سوچنے کا، سمجھنے کا بہت ٹائم ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستانی عوام بہت پڑھی لکھی عوام ہے، وہ بہت زیادہ 5-10 سال آگے سوچتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب
जो प्लेयर आप पिक कर रहे हैं, जाहिर बात है उन्होंने छोड़ा है तो हम पिक कर रहे हैं ना, अगर वो अच्छे होते तो वो क्यों छोड़ते हमें? ऐसा ही है। तो आप मतलब दूसरे लफ्जों में ये बताना जाहिर कर रहे हैं कि जी जो चीज जो कचरा माल, मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए मुझे, वेरी सॉरी टू से, ये सख्त अल्फाज हो जाएगा, जो 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 माल उन्होंने नहीं लिया वो हम ले रहे हैं। अब डेविड वार्नर जो है, एग्जांपल दूंगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से एक्स हो चुके हैं। जॉनसन होल्डर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से एक्स हो चुके हैं, मतलब वो पूरा खून, हाँ विलियमसन देखे चले, वो तो एक पॉजिटिव नाम है। वार्नर हो गए, इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी लेगेसी जो है अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने छोड़े हैं वो हमने पकड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी वेली है कि उनके पास सोचने का बहुत टाइम है। तो ये पीएसएल मैनेजमेंट वाले क्या पाकिस्तानी नहीं है? ये बैठ के नहीं सोचते हैं, ये अपने लिए सोचते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, मुझे तकरीबन 38 माह हो गए पाकिस्तान में, यहाँ हम सेल्फिश है माजरत के साथ। जब हम बोर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत लायल होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, हमें सब चीजें ठीक नजर आ रही होती है। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, यूनुस खान को देख लें, हक बात कोई करता ही नहीं है। और जैसे ही बोर्ड से निकलते हैं, जैसे ही अपोजिशन में आते हैं, सेम लाइक के अहमद शहजाद बोलने लग जाते हैं, कामरान अकमल बोलने लग जाते हैं, इतनी तनकीद करते हैं कि वो हाथ बांध के कहें बाबा तू आ जा बोर्ड में आके काम कर ले। ये एक टिपिकली पॉइंट बन चुका है। इसी तरह आप किसी डिपार्टमेंट पे काम करें, आप किसी पे तनकीद करें, वो आपको मिलाने के लिए साथ बैठा होगा कि यार ये चुप हो जाए, किसी तरह खुद को ठीक नहीं करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट पे तनकीद करके देख लें, या शाम को वो आपको तीन चीजें करेंगे, या आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, या फोर्स से रोक, आप मीडिया से रिलेटेड है, मैं भी मीडिया पढ़ रहा हूं, या वो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, या वो आपको जज्बाती तौर पे दबाएंगे। आपके रिश्तेदारों को कहेंगे यार अरशद को कहो चुप हो जाए, यार अयाज शाह को कहो, शाहजी को कहो चुप हो जाए, हमारी गलतियां ना बताए मीडिया पे आके। तीसरा काम क्या करेंगे, हमसे मरात ले लो, आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। तो वो ये हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं माजरत के साथ वो ऐसे ही कर रहे हैं। अब आमिर ने तनकीद की चैंपियन ट्रॉफी से पहले, वो चैंपियन ट्रॉफी में थे आमिर और इमाद, आपके सामने आए, ठीक है। इसी तरह अहमद शहजाद से उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। इतनी तनकीद, इतनी नेगेटिव तनकीद, कोई हद नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही बोर्ड के साथ होते हैं उनको सब अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। अब बोर्ड के साथ है तो जो बाहर बैठ के तनकीद कर रहे थे, अब वही चीजें ठीक कर लें आप। बिल्कुल वही चीजें ठीक कर लें, क्यों नहीं करते ठीक, मुझे बताएं। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। असल में ना ये पाकिस्तान में एक जिस तरह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट को दबाया गया है और जिस तरह से पीएसएल को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना लिया गया है ना, उसी तरह से इन लोगों ने भी तनकीद को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। बाहर आते हथियार बनाया हुआ इन्होंने, और उसके बाद जो जब वापसी होती है सब कुछ ठीक। अच्छा याज भाई, पीएसएल की बाकी सारी चीजें जहाँ पे एक साइड पे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं तो यंग टैलेंट। हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में होता क्या है कि राजस्थान रॉयल है या बाकी भी टीमों में हमें अक्सर जो टॉप ऑर्डर होता है ना, वो उनका लोकल प्लेयर नजर आता है हमें टॉप ऑर्डर में। पीएसएल में अगर है लोकल टैलेंट तो उस तरह से उसको मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। और अगर मौका दिया जाता है तो वो इतना कम टाइम के लिए होता है कि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। तो लोकल टैलेंट के लिए पीएसएल का इनेकाद हुआ था 2016 में, नजम सेठी साहब ने करवाया था, ये मंशूर था। आज वो मंशूर कहाँ चला गया? मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। क्या बात है यार, हम एक मुश्किल से निकलते हैं, अगली मुश्किल सामने खड़ी होती है। हमारा मसला ही यही है, हमारा अलमिया ही यही है। 10 पीएसएल हो चुके हैं, 10वां पीएसएल जारी है, हम अपनी एक T20 की टीम नहीं बना सकते इसमें से। ऐसा ही है। और उनके टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं हम 3 फॉर्मेट की टीम बना देंगे, और होता भी इस तरह ही है। बिल्कुल। मोहम्मद शहजाद जिसने अभी हाल ही में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप किया, बेस्ट ऑलराउंडर आया, टॉप स्कोरर था, टॉप विकेट टेकर था, इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको पिक करती है, पहले 3 मैचेस में उसको खिलाते ही नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। उमर साद लेग ब्रेक है क्योंकि शादाब खान खेल रहे हैं, लेग ब्रेक है, अगर वो खेलेंगे तो शादाब को बैठना पड़ेगा, साद उमर खेलेंगे तो। ऐसा ही है, ठीक है। हालांकि शादाब खान का उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है। इसी तरह मोहम्मद शहजाद वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर है, जो लास्ट जिसने अभी जिसको हसन नवाज के 3 कैच छूटे और 16 रन बन गए, 16 रन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोहम्मद शहजाद का जिक्र ना करूं तो इंतहाई ज्यादती होगी, आप उसको खुल के चांस ही नहीं दे रहे। बिल्कुल। और आने वाले दौर का मतलब वो जैक कैलिस है। अगर ये कहा जाए तो मैंने क्योंकि उसको डोमेस्टिक में बहुत करीब से देखा है, बिल्कुल, अंडर 13 से देखा है, अंडर 19 में देखा है। मोहम्मद शहजाद ने इंडिया के खिलाफ जो 91 रन किए थे, 83 फिर किए उसने एशिया कप में। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ओवर उसका 1 ओवर बचता था और ही इज ए रेगुलर फास्ट बॉलर, वो ऑलराउंडर और ही इज रेगुलर फास्ट बॉलर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। उसको 3-4 मैचेस हो गए, पहले सेशन में उसको मैच ही नहीं दिया।
तो मुझे बताएं फिर वो कैसे प्रूव करेगा। एक चीज, जैन अब्बास मुल्तान रीजन से मुसलसल टॉप कर रहे हैं, इसी तरह डिसार्ड होकर शोएब मकसूद ने छोड़ दिया, इसी तरह आमिर यामीन आपके देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए, ठीक है, कहां चले गए। इसी तरह मैं आपको सियालकोट के इतने नाम गिनवा दूं, इतने ताहिर मुगल, वन ऑफ द ग्रेट, मरहूम ताहिर मुगल, इतने अच्छे ऑलराउंडर कहां चले गए, ठीक है। तो जब लोकल टैलेंट को आप चांस ही नहीं देंगे, एज ए बट आए हैं अभी लाहौर से, तो उसको खुल के चांस ही नहीं दे रहे, किसी मैच में वो पूरे ओवर नहीं करा रहा, ऐसा ही किसी मैच में वो पूरे ओवर नहीं करा रहा। आप मुझे बताएं, खुर्रम शहजाद कितने सालों के बाद, मंडी बहाउद्दीन से खुर्रम शहजाद वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर है, जिनको थोड़ी सी इंजरी भी हुई, एहसान उल्लाह खुल के कहां चांस दे। आप एक, मैं कह रहा हूं इस 10 T20 हो गए PSL, 10 T20 में आप एक टीम नहीं बना सकते। आप फिर देखते हैं आमिर की तरफ, आप फिर देखते हैं हसन अली की तरफ, आप फिर देखते हैं इमाद वसीम आपको नजर आते हैं। ये आपने जो बात की है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ऐसा अलमिया है बहुत बड़ा कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, रिटायर्ड प्लेयर को ढूंढने लग जाते हैं। नहीं, हारिस सुहेल याद आ जाए, वर्ल्ड कप आएगा हारिस सुहेल याद आ जाएगा, शोएब मलिक याद आ जाएंगे। यार शोएब मलिक जैसे 10 लोग आप खड़े कर सकते हैं, आप क्यों नहीं नौजवान लोगों को टैलेंट को कदर करते। आप इरफान न्याजी, कितना टैलेंट छुपा हुआ था, देखिए आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो इसी तरह अभी जो अब्दुल समद है, मुझे बताएं उसने एक इनिंग खेली है, हाँ जी। जब चांस ही प्रॉपर उसको उसके नंबर पे नहीं देंगे। अब्दुल समद का तो मैं उसके साथ खुद खेला हूं, अब अंदाजा करें, ऐसा प्लेयर, मतलब इतनी उसकी फिजिक है, उससे हाथ मिलाए ना, वो पहले फेमस था शाहिद अफरीदी का, अब उससे हाथ मिलाए ना पता चलता है कि प्लेयर से हाथ मिलाया, प्लेयर से हाथ मिला रहे हैं। तो मतलब ऐसे प्लेयर्स को जाया किया जा रहा है एक तरह से। 10 साल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि आज से 10 साल पहले कोई ऐसा प्लेयर PSL में ने इंट्रोड्यूस कराया जो आज ना हम। असगर कहाँ है? हाँ जी, असगर कहाँ है मुझे मैं आपको कि हसीबुल्लाह कहाँ है? हसीबुल्लाह कहाँ है? सही बात है। मुझे मैं उंगलियों पे, अख्तर शाह किधर है, मैं उंगलियों पे आपको ऐसे प्लेयर गिनवा सकता हूँ जो मतलब रो रहे हैं, जिनके फ्यूचर के साथ खेला गया, अब ना उनको कोई खिलाता है ना कोई छोड़ता है। ऐसा ही उस्मान खान खेल रहे हैं, अब बताए नहीं खेले, अल्लाह करे खेले, परफॉर्म तो करे ना। हाँ जी, परफॉर्म तो करें। दुख तब होता है जब अच्छा प्लेयर बाहर बिठा के आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिला देते हैं जिसकी कोई भी मतलब, अब उसका फ्यूचर ज्यादा 4 साल क्रिकेट है उसकी मैक्स, अगर ये परफॉर्मेंस रही तो 4 साल भी नहीं। आसिफ अली आए थे कुछ इसी PSL से, 4 सालों में बुझ गए, वो 2-4 मैच उन्होंने जितवाए हैं। अच्छा, मैं ना इसी के साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अभी अली रजा है, ठीक है जी, अभी एक वो नया लड़का है माज सदाकत, ठीक है, इन्होंने परफॉर्म किया है। अभी मैं रिसेंटली कुछ न्यूज पढ़ रहा था कि ये अभी जो है ना बात चल रही है कि हो सकता है इनको बांग्लादेश आ रही है, हाँ जी, तो उसमें डाल दिया, टीम अनाउंस हो गई है बांग्लादेश की। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है कि हम PSL में अगर वो करता है, फॉर एग्जांपल परफॉर्म करता है लड़का, ठीक है, और उसको डायरेक्ट हम फिर ले आते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टार लगाने के लिए, जो दरमियान में 1-2 साल का प्रोसेस होना चाहिए मेरे मुताबिक, तो कि उसको आप डालें, उसके ऊपर जो है काम हो, उसको फर्स्ट क्लास खिलाएं वगैरह वगैरह, तो डायरेक्ट पाकिस्तान में लाकर क्या उस प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं करते और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती करते हैं? माज सदाकत की आपने बात की, अली रजा की आपने बात की, मैं फिर जाऊंगा मोहम्मद शहजाद के ऊपर। मोहम्मद शहजाद पिछले 1 साल से T20 में टॉप कर रहा है, फर्स्ट क्लास में टॉप कर रहा है, ठीक है, ग्रेड A में टॉप कर रहा है, ग्रेड 2 में टॉप कर रहा है, ठीक है। अगर आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि पहले ये क्रिकेट खेलें, फिर ये क्रिकेट खेलें, फिर आए पाकिस्तानी टीम में, वो तमाम फॉर्मेट पे इस टाइम कंप्लीट है, पूरा उतर चुका है, सिवाय एक PSL के। अगर आपने क्राइटेरिया PSL ही रखना है, बिल्कुल, तो फिर आप फर्स्ट क्लास क्यों गिनते हैं? फिर आप ग्रेड 2 क्यों करवा रहे हैं? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, मुझे बताएं, मैं अभी काउंट कर रहा था, 367 मैचेस हैं पूरे साल में, 367 टीम्स के मैचेस हैं। वहां से प्लेयर निकल के डोमेस्टिक खेलेंगे, स्कूल खेलेंगे, अंडर-19 खेलेंगे, अंडर-23 खेलेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान A खेलेंगे, फिर फर्स्ट क्लास खेलेंगे, फिर पाकिस्तान शाहीन में आएंगे, फिर आगे पाकिस्तानी टीम में आएंगे। या वो क्राइटेरिया रखें या फिर PSL क्राइटेरिया रखें। अगर माज सदाकत को आपने क्लिक किया, हमारे भाई हैं, मुझे तो खुशी होती है कोई भी कामयाब हो, चाहे अली रजा। अली रजा से तो मैं मिला भी हूं अभी, बहुत काइंड पर्सन और इंतहाई डाउन टू अर्थ। ऐसा लगता है कि जैसे मिडिल क्लास से आया, और राना नवीदुल हसन साहब की सारी मेहनत नजर आती है उसके अंदर। लेकिन मोहम्मद शहजाद जैसे खिलाड़ियों का क्या कसूर है? अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों का क्या कसूर है? मुझे बताएं, उनका क्या कसूर है? बस उनका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरा ख्याल है।
میرا قصور مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ڈنڈا بڑا نہیں ہے. میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جس کے پاس یہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, معذرت کے ساتھ سخت الفاظ ہو جائیں گے, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. اس کی ایک بہترین اگزامپل یہ ہے, 2017 میں کھیلے تھے فہیم اشرف صاحب چیمپئن ٹرافی, ڈائریکٹ آ کے 2024 میں چیمپئن ٹرافی کھیلا ہے وہ بندہ. ڈنڈا ہو تو پھر ایسا ہونا, پتا تو لگے کہ کوئی بندہ کھیلا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو چیمپئن ٹرافی میں لے کے جا رہے ہیں, ایک میچ کھلا رہے ہیں, پورے پاکستان کی تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں, اپنا احسان بھی اس پہ جتا رہے ہیں, اور جن کو آپ نے خوش کرنا تھا اپنے آقاؤں کو کہ وڈے میاں صاحب دی وجہ تو اسی لیا ٹیم میں تھے, وڈے میاں صاحب کو میسی دیا, آپ کا بندہ ٹیم میں آ گیا, پھر اس کو کھلا نہیں رہے آپ. نہیں, یہ وڈے میاں صاحب سے کیا مراد ہے؟ بس سب میں کیا کہوں, پھر ایسے نہ ہو مجھے ویگو ڈالے کی سیر کرنی پڑ جائے, یہ آپ کو ایکسپینج کاٹنا پڑ جائے. نہیں نا, آپ دیکھیں نا محسن نہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی دوستی ہے. آپ کو پتا ہے فہیم اشرف کے جو بزرگ ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں, رانا اقبال صاحب, جی جی جی, تو وہ مونچھوں والے جو ہے, مجھے سیاست میں ذرا تھوڑا سا کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے, پڑھنا پڑتا ہے, سوشل سول سوسائٹی ہو گیا, میڈیا ہو گیا, تو مجھے پتا ہے اس وجہ سے کہ وہ کس چینل سے آئے ہیں. رانا فہیم اشرف سے بڑا آپ کو کوئی آل راؤنڈر ہی نہیں ملا یار. 2017 کی ایک بندہ چیمپئن ٹرافی کھیل رہا ہے, بیچ میں وہ بندہ نہ قائد اعظم ٹرافی کھیل رہا ہے, نہ کہیں ٹاپ کر رہا ہے, نہ پاکستان ایک کھیل رہا ہے. آپ نیوزی لینڈ کی ٹرائی سیریز آئی نا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, پاکستان, آپ نے اس میں نہیں کھلایا اس کو, اور ڈائریکٹ اٹھا کے چیمپئن ٹرافی میں ڈال دیا. وہ پاکستان کا ہاردک پانڈیا ہے یار. معافی دے دیں ارشد بھائی, معافی دے دیں. چلیں ہم تھوڑا سا, ہم محسن کچھ لوگ ہیں, ہم دیکھیں سرفراز کے ساتھ ہم نے کیا کیا یار, بہت دکھ ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم محسن کچھ لوگ ہیں. اچھا شان مسعود یار, T20 میں جگہ نہیں بنتی, آپ کپتان بنا رہے ہیں یار ان کو. ایسے نہ کریں یار ہمارے ساتھ, ایسے نہ کریں, یا ہم بھی دعا کریں, یا ہمارے اب اعظم خان کو دیکھ لیں آپ. اچھا چلیں, اسی کے ساتھ نا مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں, حسین طلت ہے, ہاں دیکھیں اس کا نام چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہیں وہ, تو ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے اس کا نام بھی ابھی گردش میں آیا کہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں T20 ایز اے مڈل آرڈر. حسین طلت بہت پرانے کرکٹر ہیں بیچارے کو پراپر ویسے چانس نہیں ملا جیسے ملنا چاہیے تھا, جیسے ملنا چاہیے تھا. آپ کے مطابق ٹھیک ہے اگر اس کو ایز اے مڈل آرڈر کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے, وہ پراپر آل راؤنڈر ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے حسین طلت ایز اے پراپر آل مجھے راؤنڈر. پتہ ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس ٹائم گردش کر رہی ہے, جس بیس پہ اس کی سلیکشن ہونے والی ہے نا, وہ ہے کہ مڈل آرڈر کا ہمیں ایک تگڑا پلیئر مل گیا. ہریرا کہاں ہے آپ کی, مجھے بتائیں نا, ہریرا کہاں ہے؟ بہت گمنام ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے. دیکھیں عبداللہ شفیق کہاں کھیلیں گے پھر. چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, یہ تو پھر کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں, لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا. اچھا ایاز بھائی, آج سے کوئی 3 سال پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایونٹ کروایا گیا تھا پیپسی وائس آف پاکستان کے نام سے, جس کے آپ ونر ہیں, اور بندہ ناچیز بھی اس ٹیم کا حصہ تھا جو ٹاپ 20 تھے, اور بھی ہمارے بہت سارے عزیز دوست ہیں. کیا ان کا پتہ ہے وہ کہاں پہ ہیں, اور پی سی بی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, اور وہ ایک جو نامی گرامی شخصیت وہاں پہ آئی تھی, انہوں نے کچھ کیا اس کے لیے؟ رمیز بھائی ہوتے تو شاید کچھ اچھا ہوتا, میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں. اچھا, میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے رمیز, وہ جس میں ہینا نیازی والے شو میں, اس کے بعد بھی. اچھا, میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا جی وہ تو لڑکی کو جاب مل گئی ہے حجاب کو, آپ نے دیکھا نہیں وہ وائس آف پاکستان سے. تو ہاں جی, آگ کا دریا ہے پاکستان میں, کوئی بھی حق بات کرنا, پاکستان میں میرٹ کی بات کرنا, ڈوب کے جانا ہے, خود کو بھی بچانا ہے, اس کو بھی بچانا ہے, ایک سمت ذات اپنی, ایک سمت زمانہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی ریئلٹی شو, یہی 20 لوگ 50,000 میں سے 1300 میں سے ٹاپ 20, ہاں جی, اگر یہی ریئلٹی شو کہیں دوسرے کسی بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں ہوا ہوتا نا, تو ان 20 لوگوں کو اتنے چینل اٹھا چکے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, چاہے دیکھیں میں خود کو نا واللہ عالم, میں خود کو 19 سے کم سمجھتا ہوں آج بھی. کوئی والدہ کی دعا لگی ہے, پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آئی ہے, لیکن اس کے بعد سے زیادہ کڑا امتحان شروع ہو گیا میرا فیمس ہونے کے بعد. واللہ میں اب نہ رو سکتا ہوں نہ ہنس سکتا ہوں. مجھ سے ایک بندے نے, اب یہ اس شو میں آپ کے انکشاف کر رہا ہوں, پی سی بی سے 20 لاکھ روپے مانگ لیا اگر آپ نے کمنٹری باکس پینل میں آنا ہے تو. آپ سے مانگ لیا 20 لاکھ روپیہ. میرے پاس ابھی بھی سکرین شاٹس ہیں کہ وہ چیئرمین صاحب کے بہت قریبی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب تک رمیز راجہ صاحب تھے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی یہ بات کرنے کی, اور میں تھرو آؤٹ پینل میں تھا.
मतलब पाकिस्तान का जो टाइटल जिस बंदे ने विन किया वही सब पाकिस्तान उस मुझे कह रहे हैं कि अगर आपने PSL या किसी जगह प्लेटफॉर्म हाई प्लेटफॉर्म पे उर्दू कमेंट्री के पैनल में आना है तो आप 20 लाख रुपए दे दे, आप ऐसे आ जाएंगे। मैंने उनको कहा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 1 रुपया, और ये मेरा ईमान है, मेरे दिल में मेरा ईमान है, बेशक मैं कोई गलत काम करके किसी जगह पे नहीं पहुंचूंगा। मुझे देर लग सकती है, 5 साल लग सकते हैं पहुंचने में, 1 साल 11 माह से रिजर्व में हूं ना अभी मैं। जब तक रमीज राजा साहब थे मैं पैनल में था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, पाकिस्तान T20 किया, पाकिस्तान चैंपियन कप किया, पाकिस्तान वुमेन कप किया, एशिया कप किया, क्वालिफाई राउंड किया, ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 में मैं कमेंट्री करता रहा, पैनल की तारिक सईद साहब के साथ रहा। जैसे ही रमीज राजा साहब गए, नजम सेठी साहब आए, उनके नजम सेठी साहब के बाद ज़का अशरफ साहब आए और फिर मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने मुझे रिजर्व में रख दिया। अब ये ब्रॉडकास्ट वालों का काम है, मीडिया वालों का काम है, या बहुत बड़ी सिफारिशें चल रही हैं। जो भी जिस बंदे से बात करो आर्मी का बंदा ढूंढो, ये बात आप स्किप ही करेंगे वैसे, जिस बंदे से ढूंढो जी मोहसिन नकवी साहब की सिफारिश ढूंढो, किससे ढूंढो? खुद मीडिया के बंदे, आपको तो मेरिट पसंद होना चाहिए, ठीक है, कहां से ढूंढूं भाई? आप मुझे बंदा बता दें। जो तीसरे नंबर पे आई है मेरी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, हिजाब, उससे पहले वो मुल्तान सुल्तान की मीडिया मैनेजर रही, वो भी तो इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उनका सोर्स है, मुझे भी पता है, बोर्ड में उनके सोर्स है, उनके ताल्लुक है, सोर्स है, आपस की बात है, बता ही दें। मीडिया पर्सन जो ब्रॉडकास्ट में लड़के हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनकी तगड़ी लॉबी है, इस्लामाबाद वालों की तगड़ी लॉबी है। हाँ यार, ये बड़ा आपने पॉइंट रेज किया, इस्लामाबाद के ना बहुत तगड़ी लॉबी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कभी भी अपने बंदे को, और आपको पता है जो भी PSL रिकॉर्ड दिखाते हैं ब्रॉडकास्ट वाले, हमारे स्पोर्ट्स 360 हो गए, शोएब इरफान भाई हो गए, सारे इस्लामाबाद से। हाँ जी। वो अपना बंदा छोड़ के कैसे हमें चुन लेंगे? मुझे आज खुल के बोलना बहुत अब मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने सच बोलना है। मैं 1 साल 11 माह हो गए, नूरिश अपनी फर्ज आप कर रही है, आप अपनी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, मैं अपनी स्ट्रगल, मैं सारा साइड बिजनेस छोड़ के, जमीनें छोड़ के, घर छोड़ के लाहौर बैठा हुआ हूं कि अब मुझे कॉल आएगी PSL से, अब मुझे कॉल आएगी बोर्ड से। उस चक्कर में मैंने PCB लेवल 1 कोचिंग कोर्स कर लिया, PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए हैं। 1 साल में सिर्फ क्रिकेट कोचिंग करता रहा बच्चों की दानिश स्कूल में, कि मुझे क्रिकेट का नॉलेज आता रहे। हालांकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ हूँ, DG खान का कप्तान हूँ, बोर्ड का कैप्टन रह चुका हूँ, कॉलेज का कप्तान हूँ, यूनिवर्सिटी का कप्तान हूँ, मुझे क्रिकेट पता है। लेकिन इंसान हर लम्हे सीखता है। बिल्कुल। अगर यही रियलिटी शो आप अपने दिल पे रख के हाथ बताए, आप ये जो 20 लोग हैं ये एडजस्ट नहीं कर सकते। 76 चैनल है DG पाकिस्तान में, 76 चैनल है, हर चैनल। अच्छा, IPL को आप कंपेयर करते हैं, एक और मुझे बात याद आ गई, उनके हर सूबे में, हर सूबे से बोले जाने वाली बोली में कमेंट्री जा रही है। पंजाबी में जा रही है, भोजपुरी में जा रही है, हरियाणवी में जा रही है, ठीक है, आपके सामने जा रही है कि नहीं जा रही? केरला लैंग्वेज, 12 लैंग्वेजों में, तो हमारे पास तो गिनी चुनी जबानें ही 5-7 है। हाँ जी। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। पंजाबी जो सबसे ज्यादा 61% बोली जाती है, पंजाबी में कमेंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मुझे सराइकी में कमेंट्री नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सिंधी में कमेंट्री नहीं हो सकती, पश्तो में कमेंट्री नहीं हो सकती। जब आप हर लैंग्वेज में कमेंट्री करेंगे, बलोची में कमेंट्री नहीं हो सकती, तो आपके क्यों सुनने वाले लोग बढ़ेंगे, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, वो नए लोग आ जाएंगे ना, तो हाँ, उनको पुरानों को मसला पड़ जाएगा। मसला तो यही है, और कोई मसला नहीं है यार। आप ना दुखती रगे छेड़ रहे हैं, खुदा की कसम। मैं पर्सनली अगर बताऊं, हमारे जो टॉप 20 थे ना, बाकी सभी जाहिर है जो 20 में आए हैं वो कुछ करके ही आए हैं, लेकिन बाजिफ जब्बार कराची से हैं, कैसी आवाज है, आउटस्टैंडिंग। बैजी भाई, रजा भाई, अच्छा भाई, सैयद मंजर साहब, रजा भाई यहाँ पाकिस्तान से वैसे ही चले गए। नहीं, वो तो मेरे साथ सऊदीया ही होते थे पहले भी। भाई वो चले गए, हाँ जी, ठीक है। और खिजर भाई, और भी 5-7 लोग हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छे से इंसान है जो यूरोप में है, और हाँ जी, उनमें से मोस्टली तो चले गए। मंजर भाई तो फिर चलो जो है, मंजर भाई का तो कैरियर बहुत, अल्लाह उनको और नवाजे, वो तो हमारे बहुत सीनियर है। मैं तो उनके होते हुए कैसे बन गया मुझे मैं फिर एक दफा इतराफ करता हूँ, मुझसे 19 सभी अच्छे थे, वल्लाह 19 बहुत अच्छे थे। हर बंदा अपनी जगह पे ना बहुत अच्छा था, एडजस्ट करना चाहिए था। खैर चले, ये तो वो बातें हैं जो रमीज राजा साहब ने वादा किया था, मेरे पास अभी भी वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा, कि आप तीनों जो टॉप 5 आए थे, आप पांचों रेडियो पे तो कमेंट्री करेंगे ही करेंगे, और हम आपको अपने पैनल के साथ लेके चलेंगे। कितने दिन की है रेडियो पे कमेंट्री? कहाँ किया मुझे बताएं? रेडियो पाकिस्तान तो क्या, हमने तो अपने रेडियोज पे ही किया बस। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और मैं थोड़ा सा, अब हम एक जो है ना सेगमेंट है, एक मुल्क एक स्टार, ठीक है। ठीक है। इसमें मैं आपको 8 जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक के नाम दूंगा, आपने एक प्लेयर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं भारत, इंडिया। उनमें से एक खिलाड़ी चूज करना है, एक ऑल टाइम, ऑल टाइम। ऑल टाइम, एक जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होगा। मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग मेरा फेवरेट है। रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड, हाय नासिर हुसैन, कमेंट्री में भी अच्छे थे, कप्तानी भी अच्छी की है, लेकिन नासिर हुसैन के बाद जॉय रूट बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। अब भी फिर जॉय रूट को पिक किया है या नासिर को? नासिर हुसैन को रहने दे, जॉय रूट को रख ले। अच्छा, चलो। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड विलियमसन। विलियमसन। साउथ अफ्रीका, जैक एलिस। कैलिस, जैक एलिस। यार कैलिस का क्या स्वैग था यार। उफ। वो ऑस्ट्रेलियन का मुझे लगता है स्टीव वा ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, सर स्टीव वा ने, कि अगर जैक एलिस साउथ अफ्रीका में ना होता तो वो बहुत बड़ा लेजेंड होता, अगर वो 3 ममालिक में होता, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में। कैलिस का ऐसा ही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। मैं कह रहा हूँ यार, 16,000 से ज्यादा रन, 300 से ज्यादा विकेटें, ऐसा ही है। बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, उन जैसा 140 कौन है? प्लस पेस दे। हाँ जी, बताएं। और कहीं पे भी उसको खिला दें वो खेल जाता था, ओपनर से लेके 7वें नंबर तक कहीं आ जाए बैटिंग करने के लिए। ऐसा ही। श्रीलंका, संगाकारा। संगाकारा, संगाकारा पक्की बात है। विकेट कीपर बैट्समैन। जयसूर्या, नहीं, जयसूर्या वो उनकी अपनी क्लास थी। हाँ। वो अपने दौर के, मैंने उनको कम ही देखा है जब हम छोटे थे, हाँ, बस नाम तो सुना है। लेकिन संगाकारा और महिला जयवर्धने की जोड़ी जैसे ही वो गई, देखे आप श्रीलंका कितनी पीछे चली गई। बांग्लादेश, मुशफिकुर रहीम। अच्छा, विकेट कीपर बैट्समैन। ये विकेट कीपर के साथ आप क्यों जा रहे मैं खुद विकेट कीपर हूँ ना। लेकिन मुशफिकुर रहीम डाउन टू अर्थ है, एक तो रिलीजियस पसंद है, हाँ दूसरा जी, ये तो है। मैंने ये देखा है कि कभी आपने उसका कोई स्कैंडल नहीं सुना। हैं? ये तो है। शकीबुर रहीम आप देख लें, गुस्सा करता होगा, उनके कप्तान देख लें आप, गुस्सा करता होगा। मैं टीम के साथ ट्रैवल भी किया है, बांग्लादेश के साथ। क्या बंदा है यार वो मुशफिकुर रहीम, बहुत हम्बल, बहुत हम्बल। ऐसे ही। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बाबर आजम। बाबर आजम, बिना सोचे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। हाँ, बाबर आजम यार, वो अब असल में बाबर आजम मुश्किल में है अभी, और मैं मुश्किल में ना हर बंदे का साथ देना चाहता हूँ। बाबर आजम या फिर सचिन तेंदुलकर? बाबर आजम। बाबर आजम या फिर पॉन्टिंग? बस आ रहे हैं, हाँ मुझे। अब इनमें से हमने शॉर्ट करना ना करे ना करे ऐसे, फिर भी बाबर आजम। यार बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो असल में मसला ये है कि रिकी पॉन्टिंग को ना बहुत सारे स्टार्स मिले, बाबर आजम अपने कछार में अकेला शेर था, उसको ना सपोर्ट मिली। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग भी बाबर। अब देखें, वसीम अकरम मकार, यूना शुएब अख्तर, इंजमामुल हक, यूनुस खान के बाद ये वाहिद हमें 2000 के बाद स्टार मिला है। 2000 से लेके 2025 तक जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जनरेशन है, उनमें कौन लेजेंड आया है? यही लेजेंड आया है। उसकी भी इतनी टांगे खींच रहे हैं। मैं सिर्फ इसके साथ इसलिए जा रहा हूँ, बाकी आप उसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचते नहीं देखेंगे। क्रिकेटर अच्छा वो होता है मेरी नजर में ना जो इंसान अच्छा है। स्पोर्ट्समैन अच्छा वही होता है जो इंसान अच्छा है। बाबर आजम या विलियमसन? बाबर आजम। बाबर आजम या जैक कैलिस? ना करे यार, ना करे ऐसे, ना करे। नहीं, ऐसे ही अबान है। अब मुझे जैक कैलिस के साथ न जाना पड़ जाए, लेकिन फिर मैं बाबर आजम पे ही। बाबर आजम के साथ? बाबर आजम के साथ। जैक कैलिस को भी आपने छोड़ दिया यार। संगाकारा या बाबर आजम? बाबर आजम। ना ना फिको रहीम यार, ना इम्तिहान ले। आज आप ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो बताता नहीं हूँ वैसे मैं किसी को, और आपको पता है हम अपनी फेवरेटिज्म बता दें तो फिर वो कहते हैं ये तो उनके पीछे। हाँ, ये तो है। वैसे चलिए आज आने दें। बाबर आजम यार, बाबर आजम विन कर गए हैं। हाँ, बाबर आजम। क्या बात है जी। बाबर आजम के अच्छा जो चाहने वाले हैं ना, हम्म, एज अ प्लेयर उसको जो चाहते हैं वो फिर इस तरह से ही चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, असल में ना मैंने थोड़ा सा टीम का माहौल करीब से देखा हुआ है, आपको भी पता है। हाँ जी, ऐसा ही है। बाबर आजम को ना साथ सहारा कोई नहीं मिला अभी तक।
दो चार प्लेयर उसको अच्छे मिल जाए ना, देखें शोएब अख्तर को वसीम बकार मिले थे, शोएब अख्तर को फिर नीचे थे समी मिल गया, फिर शोएब अख्तर को शब्बीर अहमद मिल गए, ठीक है ना, आप देखते जाए। बाबर आजम को कौन मिला है जो बाबर आजम के साथ, अब थोड़ा सा रिजवान मोहम्मद रिजवान आए हैं, अब जो 152 वाला चेज किया था। यार ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है, फिर मेरा गुस्सा आता है मुझे ना, होटल पे बैठा हुआ एक बंदा, अब आप किसी होटल पे बैठे हुए बंदे से आप किसी दिमाग का इलाज कराएंगे, सर्जन से ही कराएंगे ना, जिनके क्रिकेट की हाव नो नहीं है यार, आप इतने बड़े स्टार के साथ उठ के ना कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। इंतहाई दुख हुआ मुझे दो तीन बातों में ना, एक तो मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश को लेके हम लोगों ने वो किया जी। पाकिस्तानी कौम ने, मैंने आपको बताया ना, हम मोहसिन कुश है, सरफराज को देख ले हमने, उसके साथ क्या किया, शोएब अख्तर को कैसे रुखसत किया, शाहिद अफरीदी तो फिर भी इज्जत से रुखसत हो गए। अच्छा उसके भी तो वर्ल्ड 11 का मैच मिला था, वरना उसको पाकिस्तान मिसबा को हमने थोड़ा सा इज्जत दी, मिसबा उल हक को। अच्छा अब आप मुझे बताएं, मतलब एक बंदा पीछे से आवाज लगा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने इतनी प्यारी बातें की उनके ऊपर कि यार आप क्या कर रहे हैं अपने स्टार के साथ, आप अपने हीरोज के साथ क्या कर रहे हैं, कल आने वाले बच्चे बनेंगे ये हीरोज अगर आप इस तरह करेंगे। आप मुझे बताएं, आप इस तरह करेंगे, मतलब एक खुदा का नाम ले, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेके अपने हीरोज के साथ हम क्या करते, कोई अच्छा काम करने लग जाए ना तो हम उसकी टांगे खींचने लग जाते। ऐसा ही मैं समझता हूँ जो आजकल के दौर के स्पोर्ट्समैन है ना, जो आजकल के दौर के खिलाड़ी है, वो आधे वली हैं यार, किसी का दिल नहीं दुखाते, चुप करके गलत काम नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं करते, मतलब करप्शन नहीं करते, आपके मुल्क को तंग नहीं करते, आपके मुल्क को लूटते नहीं है, चुप करके आपके मुल्क के नाम। सोहेल अब्बास को कोई जानता है, दुनिया का ग्रेटेस्ट हॉकी का प्लेयर, मुझे बताएं। मैं कोशिश में हूँ उनको बुलाना है, मैंने इधर ही है, लाहौर में ही है, वैसे आप बुलाएं उनको। वो मैं कह रहा हूँ कि अब मैंने तो सुना है कि वो जर्मनी जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी इतलात यही है, ठीक है। आप मुझे बताएं उन जैसा कोई हॉकी का स्टार आएगा? सर ठीक है, तो हमने उनके साथ क्या किया है, इसीलिए हॉकी का ये हाल है। आप बाबर आजम के साथ ऐसा करेंगे, क्रिकेट पीछे चली जाएगी। रिजवान के साथ ऐसा करेंगे, यार आपको कुछ बुरा तो नहीं कह रहे, आपको अपनी गेम कर रहे हैं यार, आप इस तरह करते हैं अपने स्टार्स के साथ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से, खुदा की कसम ऐसे ना करें अपने हीरोज के साथ। अच्छा ये तो एक अलमिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है कुछ चेंजिंग हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी ना लास्ट है, ये बात मैंने थोड़ी सी पहले करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारी वो चीजें उस तरफ निकल गई यार, पाकिस्तान के अंदर वो क्रेज मुझे खत्म होता नजर आ रहा है शौकीन के अंदर। मैं कराची को देखता हूँ, बहुत मायूस हो जाता हूँ। लाहौर में सिर्फ जिस दिन बाबर का मैच होता है आपको क्राउड देखने को मिलता है, या जिस दिन लाहौर का अपना मैच होता है, अदरवाइज यहाँ पे भी जो मैचेस हुए वो क्राउड नहीं था जो हमने पिछले सीजन्स में देखा है। उसकी वजह है, हाँ वो वजह तो मैं जानना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट भी एक इदारा है, क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, ठीक है, जिस तरह वापडा आपने तबाह किया, हाँ जी ठीक है, डिसऑनेस्टी बेईमानी जहां करेंगे ना, एक मुद्दत के बाद वहां सवाल शुरू हो जाएगा। आप घर में बेईमानी शुरू कर दें, आप घर में ना इत्तफाकी शुरू देखेंगे आप, ठीक है, आप एक क्लास में ना बेईमानी शुरू कर दें, क्लास का ब्लैक बोर्ड गुम कर दें, क्लास के चौक गुम कर दें, क्लास की चेयर्स गुम कर दें, आपको क्लास में वीरानी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके ग्राउंड्स क्यों वीरान होते जा रहे? नाइंसाफी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठीक है, मनपसंद लोगों को। अरशद अच्छा है ये आगे ना जाए, मेरा बंदा आगे चला जाए। जो चीजें पहले PIA में थी, जो चीजें वापडा में थी, जो चीजें पुलिस में थी, मेरा बच्चा आ जाए, मेरा बच्चा आ जाए, ठीक है। ठीक है कि अब आजम खान को देख लें आप, जी। शाहीन अफरीदी को देख लें आप, ठीक है, उसके बाद में अब मोहम्मद अब्बास अफरीदी आए हैं अभी, उमर गुल के, मतलब आप किसी ना किसी का खुरा निकाल ले, खोज निकाल ले, सबको रिश्तेदार नजर आएंगे आपको। वहां रियाज ने क्या किया मुझे बताएं, चीफ सेलेक्टर बन गए, ICC के इलीट पैनल का एक मीटिंग थी उसमें चले गए एज ए डायरेक्टर बन के। तो मतलब है कि आप जहां डिसऑनेस्टी करेंगे ना, उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सोने की चिड़िया है, दोनों हाथों से जिसने लूटना है, जिसका टेनोर है लूट लो और जाओ। जब आप लूटेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। यार इसमें एक ये फैक्टर नहीं आता कि ये सैलरीज बहुत ज्यादा देते हैं। किसको? मतलब जो भी ये नीचे वाली है ना, जो स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं लोग,
تو شاید ایک اس تو وجہ سے عوام کو نا بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہے. عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے بجٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے پاکستان کرکٹ ہاں، بورڈ. یہ تو یہ اپنا نہیں، میں پلیئرس کی نہیں بات کر رہا ہوں. اوور آل میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پاکستان کے بجٹ سے ان کو سیلری نہیں دیتے ایسے کبھی بھی. ہر ٹیسٹ کنٹریز کو 30 لاکھ ڈالر پر ایئر, 30 لاکھ یا سم تھنگ اس طرح کے کچھ اسی فگرز میں نا اتنے ملتے ہیں. تو اسی میں, اور پھر آئی سی سی دیتی ہے ہر ٹیسٹ کنٹری کو. پھر اس کے بعد کمرشلز ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹی وی کے جو رائٹس بکتے ہیں, پھر پی ایس ایل ٹائپ جو لیگز ہوتی ہیں اس سے پیسے آتے ہیں. پھر آپ جب ادر کنٹری اوے جا کے کھیلتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ بجٹ جمع ہوتا رہتا ہے. دیکھ لیں آپ دنوں میں 12 ارب روپے لگا کے چلے گئے محسن نقوی صاحب, تو ان کے پاس بجٹ بہت ہے. یہ واحد ادارہ ہے این ایل سی کی طرح جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا ہے. اب ان کی کوشش ہے کہ اس ادارے کو گرایا جائے. سیلریز وہ دے تو رہے ہیں اچھی, لیکن وہ اس کے مقابلے میں کام ہی نہیں دے رہے ان کو اچھا. یہی تو مسئلہ ہے, مسئلہ المیہ تو یہی ہے نا بات. میں اچھا پھر مجھے بتائیں گراؤنڈ کیوں نہ ویران ہو؟ آپ عوام ایک جیت چاہتی ہے آپ سے. یار نیشنل کپ ہوتا تھا جب یہ افریدی لوگ اور مصباح لوگ کھیلتے جی, لوگ کراچی کے اسٹیڈیم کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے, اور اب پی ایس ایل پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ برانڈ ہے. اور آپ کی پنڈی کے 5 انکلوژر میں دیکھ رہا تھا خالی پڑے ہیں, سوائے لاہور کے کہیں کراؤڈ ہی نہیں آتا. فیصل آباد کو آپ نے میچ دینے تھے, کم سے کم فیصل آباد میں لوگ آ جاتے. ہاں جی, یہ تو ہے, وہ تھوڑا سا بھوکے ہیں, ان میں بھوک ہے اس چیز کی ابھی بھی. کھیل کو پسند کرتے ہیں, ملتان کو آپ دیں ملتان فل ہو جائے گا. کھیل کو پسند کرتے ہیں وہاں کے لوگ, اچھے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, وہ لڑائی جھگڑے سے, میں فیصل آباد والے ہنسمکھ خوش مزاج لوگ ہیں. لاہور کے لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں, وہ کھیل چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. اب کبڈی کا ورلڈ کپ آئے, دیکھے رش لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ہاکی کرا دیں آپ. میں نے ابھی پچھلے دنوں ہاکی کی کمنٹری کی ہے. پاکستان پولیس اور جرمنی کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور ڈچ کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اتنا رش ہو گیا, مطلب لوگ چاہتے ہیں کھیل ہو. اچھا کھیل کے بعد لوگ ایک اس وجہ سے مایوس ہیں کہ یار ورلڈ کپ جیتے نہ جیتے انڈیا سے تو جیت جائے, ورلڈ کپ جیتے نہ جیتے آسٹریلیا سے تو جیت جائے. پہلے ہماری ٹیم تگڑی ہوتی تھی, جیت کے لیے جاتے تھے لوگ. اب تو مطلب ٹیم کا جو حال کیا ہے, 2-3 سال کا ٹینیور اچھا رہا ہے, 19, 20, 21, 22 تک نا, کوئی تھوڑی سی ٹیم 21 تک, بس 21 تک ہم کہہ سکتے ہیں. چلیں, یہ ایسی محرومیاں ہیں جن کو ہم جو ہے نا کہتے خون چلتا ہے بس. اور اسی کے ساتھ وہ آپ نے ایک دفعہ اس رمیز بھائی کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ اب کیوں روتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اب اداس پھرتے ہو. ہاں, اب اداس پھرتے ہو, اس طرح ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو وہ جو ہے نا, اب تو اس کی آنکھوں کے میں کدے میسر ہیں, پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں میں جاموں میں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے تو نے چن لیا ہے ایک نام, اس نے بھی سوچ رکھا ہے ایک نام ناموں میں. کیا بات ہے یاز بھائی, آپ کی جو شاعری ہے نا اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے, اور کامنٹری میں جو یہ آپ تڑکا لگاتے ہیں نا اس کا, یار اس ٹائم بہت مزہ. بھائی صاحب پاکستان کے مقابلے میں میرے روم میٹ بھی آپ تھے اور پہلی ملاقات بھی میری آپ سے, بریک فاسٹ بھی ہم نے اکٹھا ہی کیا. ہاں اکٹھے ہی کیا, یاد ہے. چلیں انشاءاللہ جی, اب تو گپ شپ, اس لحاظ سے آپ میرے لیے ویسے لکی ہیں. چلیں انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی. اللہ بہت عزت دے. بہت شکریہ یاز بھائی, آپ نے ٹائم دیا آج, اور آج دل کے دکھ میں نے بیان کیا. پتہ نہیں آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ادھر ادھر نہیں ہوگی جی, نہیں ہونے دیں گے. اللہ عزت دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی ہاں بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ ایاز شاہ, جنہوں نے بہت ساری چیزوں پر آج پردہ اٹھایا ہے. بہت سارے حقائق آج ہمارے سامنے کھل کر انہوں نے بیان کیے ہیں. جو زیادتیاں, جو پاکستان کے اندر سیاست کی نظر ہونے والا ٹیلنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بخوبی بولے ہیں, اور ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے کھل کے بات کی ہے. یقیناً آج کی جو یہ گفتگو ہے, یہ ایک تو بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے, اور دوسرا بہت کچھ سیکھنے کو بھی اس سے ملے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ سب کو پسند آئے گا, اور انشاءاللہ کسی اور دن, کسی اور ایپیسوڈ اور کسی نئے مہمان کے ساتھ محمد ارشد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.